हमने टैंक स्टे में खाना खाया और खाना खाने के बाद अब हम इस जगह में आए हैं। यहाँ पे हमें कुछ ज्ञान दिया जाएगा। समथिंग तो मुझे समझ में आ रहा है, ये लिखा है ओम मनय पद में हम मे बी आई डोंट नो, ये लिखा हो सकता है, लद्दाखी है ये। इधर जो लिखा है दैट इज ओम नमः पद में हम, ये थोड़ा दूसरा है। हिस्टोरिकली टैंक स्टे बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है जिसका मुझे पहले ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने एक फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट हैं जो पिछले 16 साल से यहाँ पे बेस्ड हैं लद्दाख में, तो उनको इनवाइट किया है हमें सबको थोड़ा ज्ञानवर्धक ज्ञान देने के लिए। लेट अस सी, वी लर्न समथिंग न्यू अबाउट दिस प्लेस। Waiting for you to start. Start. Good? Yes, Okay. okay. So, for a quick introduction, my name is Quentin. I'm an archaeologist. I've been working in Ladakh for the last 16 years. And I'm going to introduce you like this site briefly. And to understand, we'll start with the beginning that Tongse is a very strategic place in the past and has been for thousands of years. In the sense that if you come from Khotan, so you know like Xinjiang in China, where you had like the Silk routes going in the oases of like Kashgar, Yarkon, all of that. When you come to Ladakh, you cross like the Karakoram Pass, and then you go down the Shyok River where there is like no village, no thing. And the first inhabitable valley you meet is Tongse actually. So this was a very important place because for the trade between the Silk routes in Central Asia and Ladakh and the Tibetan plateau by extension. And in Tongse we have a lot of inscriptions like these ones that were written in scripts, a lot of scripts, lot of languages, several of which are now dead. So this one is written in Sogdian, and we have a number of them. So Sogdiana was a former region of, it was a former kingdom in Central Asia, region in Central Asia, that was famous for its traders. In the medieval period, their traders were going everywhere along the Silk routes, and Ladakh was one of the nodes of the Silk routes. And we also have inscription in Tumshukis, which is another dead language. We have inscriptions in Sharada, which is the old language of Kashmir, also dead language nowadays. We have inscription in Chinese that we will have a look at, also in Arabic, and in Old Tibetan, of course. And during the medieval period, so most of the inscriptions here are datable from the 7th to 10th century, more or less. You had three main empires that were fighting for the control of Central Asia and of the Silk routes. They were the Chinese, the Arabs, and the Tibetans. And that's something that usually people don't really realize, that the Tibetans used to have a gigantic empire. Also, Ladakh and Tibet used to produce a lot of important luxury products. So you had a lot of gold, a lot of gold mines everywhere. You had also, of course, Pashmina, Shatush. So Shatush now is forbidden, but it was like the wool from the Tibetan antelope, which is the warmest and softest in the world, like more than Pashmina. And musk. So musk comes from the musk deer. It's a gland that is used to make perfumes, which is why we say like musky, like for a smell. And in the medieval period, the most prestigious perfumes in the world were like the Arabic perfumes. And to make the best Arabic perfumes, you needed musk coming from the Tibetan high plateau. So musk was more expensive than gold. And musk was so important on the Silk routes that actually now, sometime nowadays, instead of calling them Silk routes, we call them musk routes, because musk was actually so valuable and much more important than silk. Before big chunks of Europe, that's something that we have. Hey, they is sitting over there on the top of this rock, having the fun time. It's bloody so windy here. It looks like it's minus 30. I think I know this person.
Okay, yeah. Oh, that's Jill. Hey, hi. Solar farm, kind of solar thing here. क्या जगह है यार. It's so windy. शाम को क्या होगा पता नहीं. A thick sheet of ice. हाँ तो इस पे दौड़ना मतलब ऐसा लगेगा स्टील पे दौड़ रहे हैं. Really the sheet of ice is really hard. Look at it, amazing. It's pretty thick, huh? You see the density is like समर में आओ तो भाई ये रंग बदलती है यही लेक. कभी नीली होती है, कभी टर्कोइज होती है, और अभी लुक्स वाइट. अभी हम जा रहे हैं अपने ठिकाने पे. वी आर गोइंग टू मान विलेज वेयर हमारा होम स्टे है. तो ये हमारी बस में जितने भी लोग हैं हम सब एक ही होम स्टे में रुकने वाले हैं. हाँ, मल्टीपल होम स्टे में एक ही गांव में. सेम विलेज राइट. मान विलेज. अमेजिंग. तो गाइस यहाँ हम पहुँच गए हैं. ये है मान गांव. और शायद हमारी यार गांव से ऐसा व्यू मिले तो फिर क्या बात है. हे हाय. अभी अपडेट ये है कि हम पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे के अंदर. ये है पैंगोंग का होम स्टे. व्हाट इज द नेम? पैंगोंग हाउस. अभी यहाँ पे गांव का नाम है मान. नाउ इट साउंड्स वेरी पंजाबी काइंड ऑफ अ नेम, है ना? हरभजन मान, समथिंग लाइक दैट, बट इट इज नॉट दैट मान. तो यहाँ पे भी ऐसे नाम होते हैं. ये गांव का नाम है मान. तो हम रुके हुए हैं. ये हमारा रूम है. ये होम स्टे है, मतलब ये किसी का घर होता है तो वो घर में ऐसे 2-3 कमरे बना के रखते हैं जहाँ पे गेस्ट को ठहराया जा सके. So this is one of them, which looks very decent, very nice. You see this? It's very nicely done homestay. क्यों भाई, कैसा लग रहा है? और हाँ, ये यहाँ पे हीटर है. ये पता नहीं कैसे काम करता है, बस चल रहा है. लेकिन हमें कुछ पता नहीं लग रहा हीट का. We can't make out anything out of this. मतलब हमें कोई हीट का कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि भाई साहब टेम्परेचर जो है ना वो -25 से -30 के बीच में है. इतनी हवा चल रही है बुरी तरह से. मौसम ख़राब हो चुका है. पिछले 2 दिन से मौसम ख़राब है. तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि इतनी हवा चल रही है. मैं आपको ये दिखाता हूँ बाहर का. आपने ये नज़ारा देखो ज़रा. ये देखो बाहर ये जो वो लगा हुआ है कुछ ना कपड़ा सा, ये उड़ रहा है. इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कितनी ज़ोर से हवा चल रही है यहाँ पे. और ये लेक है. लेक का व्यू आपको दिखाई दे रहा है. पूरी फ्रोज़न है लेक. लेक इज ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 95% फ्रोजन है. कहीं कहीं पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये फ्रोजन नहीं है. तो यार बाहर जाने का भी ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. मैं आपको वैसे एक ये होम स्टे का एक और नज़ारा सा दे देता हूँ कि कहाँ से हम अंदर आए, कैसे आए. ये आपको दिखाना है. ये देखो, ये इसलिए डबल है ये कमरा ना. यहाँ से हमें बाहर जाना है. थोड़ा सा अंधेरा होता है. ये मैं आ गया हूँ. ये जरा कॉरिडोर है, कॉमन एरिया जिसको हम कहेंगे. ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है. डाइनिंग हॉल है. अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है. तो खाना आप सर्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा. बाकी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ. ए हाय मैंक.
Here's Mayank over here. He's staying in another room. He's one of the participants here. तो ये यहाँ का नज़ारा है यहाँ से। ये हवा बहुत ही ज़्यादा तेज है। पूरा एरिया जो है ना ये पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखो मेरे पीछे भी बर्फीले पहाड़, आगे भी बर्फीले पहाड़। यहाँ पे जो भी सेटलमेंट है ये सब मोस्टली आर्मी की सेटलमेंट है। कितने बड़े पहाड़ हैं। आपको मैं यहाँ का टॉयलेट दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं ड्राई टॉयलेट। ये अपने शहरों जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, पानी नहीं होता है। अब -25-30 में कहाँ आपको पानी मिलेगा, सब कुछ जमा होता है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कोई है कि नहीं टॉयलेट के अंदर। कोई है? कोई नहीं है। तो भाई साहब ये है यहाँ का टॉयलेट। एक छोटा सा बल्ब जग रहा है। इसको बोलते हैं ड्राई टॉयलेट। ड्राई टॉयलेट इसलिए कि ये आपको एक गड्ढे के ऊपर बैठना होता है और फिर अपना कार्यक्रम करने के बाद ये इससे वो मट्टी को डाल देते हैं नीचे। वो क्या है, ऐसे खाद बनती रहती है। जब वो खाद बन जाती है तो उसी खाद को फिर ये सब्जियों में डाल देते हैं और फिर जब कोई इनके घर पे रहने आता है तो आप समझ जाइए। बस इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो देखिए यहाँ पे और कोई गुजारा भी नहीं है। ये इनके जानवर वानवर सब यहीं रहते हैं। ये अंदर है। यार मैं इसमें बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोज नहीं होना चाहता, क्योंकि अभी मैं हूँ करीब 14,500 फुट पे। सो ये है हमारा होम स्टे, पैंगोंग हाउस बुटीक स्टे, माउंट विलेज। So that's the update guys. See you again. Bye.